have worked with Divya in 3 films. हैं? क्या बात कर रहे हो? 5 हो गए? देखा? But the 3 I really clearly remember is our Punjabi films that we did. We did Des Hoya Pardes. Request her to read just another excerpt for me. May I give you a little hug? Okay. A very good evening to all of you. And Divya, all my love to you. So I've just walked in and I've been ushered here. I'm not sure exactly what has happened before, but I did think I would say a few words for Divya before I started to read, and I hope that's okay. Yes? So I wanted to tell you that I have worked with Divya in 3 films. हैं? क्या बात कर रहे हो? 5 हो गए? देखा? But the 3 I really clearly remember is our Punjabi films that we did. We did Des Hoya Pardes, Varis Shah, and then Sukhmani. And perhaps not many people know it here, but they were national award-winning films produced by Manjeet Maan and Maan Saab, Gurdas Maan Saab. And that is, I remember Varis Shah की shooting so clearly. चंडीगढ़ के बाहर जाते थे सुबह सुबह, नवंबर का महीना था तो बड़ी ठंड होती थी सुबह सुबह, एंड कोहरा होता था रास्ते पर, और सरसों के खेत, वहाँ से गुजर के जाना शूटिंग की लोकेशन पर. एंड देयर वी हैड अ वैनिटी वैन. एंड जब बजट छोटा होता है ना तो और मज़े आते हैं. The vanity van had to be shared by Divya and myself, and the mornings were so much fun because we'd land up there at 7:30 in the morning. बड़ी ठंड होती थी, बाहर पराठे बन रहे होते थे, चाय बन रही होती थी. Then we'd get the tea and everything inside. We'd be sitting and chatting before we got, started to get dressed. And I remember that your mom had also come during those days to be with you in Chandigarh. And so the 3 of us used to be sitting there and jamming and gossiping and chatting and having a great time. Well, I heard this and I cannot think of a more beautiful thing to say about mothers. Okay, God could not be everywhere, and so He created moms. थोड़ा सा बता दूं कि ये this was the time, the page I'm about to read is about the time when Divya was in college in Punjab and she auditioned for a Stardust, what was it, a Stardust talent hunt. And quite on the slide, like how little girls will just do it for the fun of it, she had also sent her entry in, and then she got called for the competition. So this is her in Punjab, and this is her breaking the news to her Nani Ma, or her Nani Ma has just gotten to know. She pulled me aside and asked sternly, "Have you both lost your minds? You got a crazy idea in your head, and now your mother's supporting you. I am not with both of you in this decision. And you should be practical. You are not the typically tall and pretty type to be a heroine. Just study, be an IAS officer, and get married." I was a bit shocked by her outburst, but not shaken in my resolve. In fact, as I walked away from her, I had a smile on my face. Something inside me told me that Ma and I, the 2 crazy women, would make it. So we both boarded the train to Mumbai and went to Mama's house. He and his family, comprising his wife, 2 daughters, and my Nana, were very happy to see us, though a bit surprised. We'd not let out the real motive for the visit, since my mama
was a very conservative Punjabi man, and for now, there was no reason to alarm him. I had prepared a mono act, which Ma had written for the audition. I had performed it once at a college youth festival, so it was tried and tested. Thank you. Thank you so much, Juhi. हाथों में आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या फील करती है ये मोमेंट आपके लिए कितना प्रिविलेज मोमेंट है यार? दिव्या के साथ मैंने 5 फिल्मों में काम किया है। उसमें से 3 पंजाबी फिल्म्स थी, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स। फिर हमने चौक एंड डस्टर में लास्ट काम किया, और एक्चुअली चौक एंड डस्टर ख़त्म हो रही थी, रिलीज़ पे थी, और जब हम प्रमोशन का काम कर रहे थे तब दिव्या बहुत ही टेंस थी, बहुत टेंस थी, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल में थी। एंड एक्चुअली रिलीज़ से कुछ ही दिन पहले वो गुजर गई। सो आई हैव सीन दिव्या थ्रू दिस फेज। दूसरा, मैंने खुद अपनी माँ को खोया है बहुत साल पहले। डुप्लीकेट की शूटिंग करने गए थे प्राग, तो जब हम वहाँ लैंड हुए तो अगले दिन मम्मी उठकर अपनी मॉर्निंग वॉक पे गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तो मैं वो जानती हूँ कि वो दुख क्या होता है, एक माँ को खो देना। So somewhere I understand Divya, and she is an actress who I admire. मैंने उनकी भाग मिल्खा भाग देखी, और ऑफ कोर्स फरहान अख्तर ने बड़ा कमाल का काम किया था, बड़ी कमाल की फिल्म थी, मगर मुझे लगा कि दिव्या ने इतना खूबसूरत काम किया, मैंने उसे फूल भेजे थे उस फिल्म के बाद। सो आई हैव नोन हर ओवर द इयर्स। 12-13 साल से मैं उन्हें जानती हूँ, हमने काम किया है, जैसे कि मैंने कहा कि हमने फिल्मों में भी काम किया साथ में, और बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ दिव्या एंड फॉर हर मदर एंड फॉर ऑल मदर्स। जूही जी, साथ ही जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपका आपकी मॉम के साथ है जो आप हमेशा से बचपन से लेके आज तक उनकी कही कोई बात जो आप हमेशा अपने साथ लेके चलती हो, कोई भी एक उन्होंने ऐसी बात कही हो आपको? हाँ, मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं अपनी माँ की तरह ही बनना चाहती थी। वो ताज होटल में काम करती थी और बहुत सुंदर सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर, बहुत अच्छी तरह पिन करके, हमेशा बड़ी खूबसूरत लगती थी काम पर जाते हुए। तो मैंने सोचा मैं उनकी तरह बनूंगी। फिर मम्मी ने बोला नहीं ये सब काम मत करना, तो तुम कुछ सेल्स मार्केटिंग कुछ एक्साइटिंग सा काम करना, मैं जो करती हूँ मत करना। मुझे तो ये भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी, कुछ 11 साल की, तो मुझे कोई मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला था, तो उसके मुझे कुछ 1000 रुपये मिले थे वो काम करने के लिए। तो मैं पहले भाग के मैंने अपने पैसे मम्मी को दिए थे कि ये मैं आपको दूँ, मतलब मेरी पहली कमाई। मैं 11 साल की थी, तो शी वॉज़ वेरी टच्ड, वेरी इमोशनल। फिर मैं जब स्टार बनने लगी, जस्ट डर रिलीज़ हो गई थी, मैं मतलब स्टार बन गई थी। यू वुड से आई वाज, उनका बर्थडे आया और मैंने उनके लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया था माँ को, यू टेक हर फॉर ग्रांटेड। पहली बार मैंने उनके लिए हीरे के इयररिंग्स खरीदे थे अपनी कमाई से, और वो इतनी खुश हुई कि वो रोने लग गई, और बस कुछ ही महीनों के बाद वो गुजर गई। तो ये बात मेरे साथ हुई। जूही जी, अब इतने सालों से इंडस्ट्री में, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी अपनी कोई बायोग्राफी, आप भी अपनी बुक लॉन्च करेंगी, कभी अपनी कहानी को बताएंगी बुक के जरिए? ओ बाप रे, जितना मैं हंसी हूँ ना उतना मैं रोई भी हूँ, तो पता नहीं हिम्मत होगी कि नहीं। अच्छा जूही जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल एक्टर हैं, साथ में ऐसे इवेंट पे भी हमें रोज मिलती रहती है। इसके अलावा आप बहुत बड़ी अच्छी बिजनेसमैन भी हैं। अरे वाह, आईपीएल आ रहा है। आईपीएल भी आ रहा है, तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी क्या चल रही है, अभी मिनी ऑक्शन होगा। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस साल हमारी टीम में। वसीम भाई नहीं है हमारे साथ, मैं उनकी जगह बालाजी, जो कि एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, वो कोच बनेंगे बॉलिंग के
बॉलिंग टीम के। आई थिंक एक मेरा फेवरेट प्लेयर एंड्रे रसल, वो नहीं खेल पाएगा, वो बैन हो गया। सो आई थिंक देयर विल बी अ फ्यू चेंजेस इन द टीम, बट आई होप इट्स फॉर द बेटर। जी एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस साल हमने देखा काफ़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, ये सब मुझे मत कोई पूछो। आपके इस टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी ऐसा या और भी कोई फिलहाल तो है ही नहीं, नहीं है। अब नहीं है। अच्छा जूही जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चौक इंडस्ट्री पर अभी कहाँ देखेंगे हम आपको, क्योंकि ऑडियंस आपको हर वक्त पर्दे पर देखना ही चाहती है। मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ, नागेश कुकुनूर कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की थी। मतलब उन्होंने पहला एपिसोड मुझे पढ़ने के लिए दिया और बहुत ही कमाल का था, एंड जिसमें मैं एक डिफेंस मिनिस्टर का रोल कर रही हूँ, तो मैं बड़ी खुश थी और मैं वो शूटिंग करने कुछ 8 दिन के लिए, 8 दिन के बाद जा रही हूँ। कब तक आ जाएगी ये फिल्म लोगों के बीच? ये एक वेब सीरीज़ है, तो अभी तो शूटिंग होगी, फिर लेट्स सी जब रेडी हो जाएगी तब आ जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।